The Man in Asbestos. In this story, Stephen Leacock presents division of life in future without dreams, work, challenges, threat, etc. The Man in Asbestos is the story of a man who wakes up in future only to be disillusioned with the dull monotonous life led by the man in asbestos. He finally established that no work and no play deprive people of joy. ये जो लेसन है इसमें जो मैन इन एस्बेस्टॉस है फ्यूचर के इंसान के रूप में शो किया गया है। तो कैसा होगा फ्यूचर जो बिना कोई ड्रीम के, बिना किसी काम के, चैलेंजेस के, थ्रेट के इंसान अपने मज़े वाली ज़िंदगी को कैसे खो देता है, इस लेसन में शो किया गया है। Children, do you think the future world would be a better place to live in as compared to our present world? Why not? चिल्ड्रन, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर वर्ल्ड हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड के कंपैरिजन में लाइफ के लिए बेटर होगा? सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर को रीड करते हैं और देखते हैं कि 3000 में वर्ल्ड कितना डिफरेंट हो सकता है। I had always been, I still am a passionate student of social problems. The world of today, with its roaring machinery, the toil of its working classes, its strife, its poverty, its war, its cruelty, appalls me as I look at it. I love to think of the time that must come someday when man will have conquered nature, and the toil-worn human race would enter into an era of peace. These lines tell us that this story is narrated in the first person. The narrator is the author, and in the story he is the passionate student of social problems. Author social problems में believe करता है, और जब author आज के वर्ल्ड को देखता है तो क्या देखता है कि कैसे हम चारों ओर मशीनों से घिरे हैं, वर्किंग क्लास कैसे हार्ड वर्क करता है, उसके संघर्ष को, गरीबी को, वॉर, क्रूलिटी एक्सेट्रा, इन सब को देखकर ऑथर जो सरप्राइज़ है वो उस टाइम को सोचना चाहता है जब मैन नेचर को जीत लेगा और विदाउट स्ट्रगल पीसफुल लाइफ को जिएगा। आई लव टू थिंक ऑफ इट एंड आई लॉन्ग टू सी इट। इसलिए ऑथर उस वर्ड को सोचना और देखना चाहता है। सो आई सेट अबाउट द थिंग डेलिब्रेटली। ऑथर डेलिब्रेटली मीन्स जानबूझकर बात को सेट करता है। What I wanted to do was to fall asleep for 200 or 300 years at least and wake and find myself in the marvel world of the future. अब ऑथर क्या करता है, वो सो जाता है और मानो 200 या 300 वर्षों के लिए सो गया हो और फ्यूचर की मिरेकल वर्ल्ड में चला जाता है। I fell into a sleep. Dimly I could feel the days go past, then the years, and then the long passes of the centuries. धीरे धीरे ऑथर क्या फील करता है कि दिन बीतते जा रहे हैं, फिर ईयर्स, फिर सेंचुरीज। When I woke up and looked around me, I found myself lying, or rather sitting up, on a broad couch. From the glass cases around me and the stuffed figure that they contained, I appeared to be in some kind of a museum. ऑथर नींद से जागता है और अपने चारों ओर देखता है तो क्या देखता है कि वो लेटा हुआ है। फिर वो एक सोफे पर बैठ जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजियम है, चारों ओर बस ग्लास केसेस ही हैं। Beside me sat a man. His face was hairless, but he looked neither old nor young. He wore clothes that looked like the grey ashes of paper that had burned and kept its shape. He was looking at me quietly, but with no particular surprise or interest. ऑथर बताता है कि उसके पास एक मैन बैठा था जिसका फेस हेयरलेस था, मीन्स जैसे हमारे आपके बाल होते हैं ना हेड पर, वैसे उसके नहीं थे। वो ना तो देखने में ओल्ड था और ना यंग, और उसके कपड़े भी जले हुए पेपर की राख की तरह ग्रे थे। अब वो ऑथर को बिना सरप्राइज के बस क्वाइटली शांत देख रहा था। क्विक, आई सेड, ईगर टू बिगिन, वेयर एम आई, हु आर यू, व्हाट ईयर इज दिस, इज इट द ईयर 3000 और व्हाट इज इट। ऑथर जब उठा तो वो क्या पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, कौन सा ईयर है,
क्या ये 3000 ईयर है? भाई जब हम बहुत दिनों बाद उठेंगे तो ऑब्वियसली यही पूछेंगे। तो ऑथर भी यही सब पूछता है। I think I know what you mean, he said, but really, I haven't the faintest idea. I should think it must be at least that within 100 years or so, but nobody has kept track of them for so long it's hard to say. अब वो मैन क्या कहता है कि वो जानता है कि ऑथर क्या कहना चाहता है और बताता है कि कम से कम 100 साल या उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है। Don't you keep track of them anymore? I gasped. ऑथर पूछता है कि क्या आप उनमें से किसी को ट्रैक नहीं करते हो? मीन्स टाइम ट्रैक नहीं करते हो? What was the use of it you see after we eliminated death? मैन कहता है इसका क्या यूज होगा जब एलिमिनेटेड डेथ है? एलिमिनेटेड डेथ, आई क्राइड सिटिंग अपराइट। एलिमिनेटेड डेथ सुनते ही ऑथर चिल्लाने लगता है। आह, he said, I was saying that after we had eliminated death and food and change, we practically got rid of events and मैन बताता है कि हमने केवल डेथ को ही डेथ नहीं दी है, बल्कि फूड, चेंज और यहाँ तक कि इवेंट्स से भी छुटकारा पा लिया है। मीन्स इन सबको एलिमिनेट कर दिया है। स्टॉप, आई सेड, माई ब्रेन रीलिंग, टेल मी वन थिंग एट ए टाइम। ऑथर चिल्लाता है और कहता है एक टाइम में एक चीज़ बताओ। He said, I see, you must have been asleep a long time. Go on then and ask questions. मैन कहता है आप बहुत समय से सो रहे होंगे तब तक, और आप जो पूछना चाहते हैं तो पूछते रहिए। What are those cloths made of? ऑथर पूछता है वो कपड़े किसके बने हैं? Asbestos, answered the man. They last hundreds of years. We have one suit each and there are billions of them piled up. If anybody wants a new one. मैन बताता है एस्बेस्टोस की मीन्स एक ऐसा सॉफ्ट ग्रेश वाइट मटेरियल जिसको फायर कैच नहीं कर सकता, और सबके पास एक एक सूट है, और अगर किसी को नया चाहिए तो वो नया ले सकता है। यहाँ इसका अरबों ढेर है। Meanwhile, we had started walking and come into a street, and I looked around surprised. अब ऑथर बताता है कि हम बात करते करते रोड पर आ जाते हैं, तो मैं चारों ओर देखता हूँ और सरप्राइज हो जाता हूँ। Broadway, was it possible? The change was absolutely appalling. In place of the roaring thoroughfare that I had known, here was a silent, deserted street. ऑथर बताता है बिल्कुल चेंज। क्या ये पॉसिबल है? देखकर भी डर लगता है। जहाँ इतना ट्रैफिक रहता था वहाँ साइलेंस। नॉट ए व्हीकल मूव, नो स्ट्रीट वायर्स ओवरहेड, नो साउंड ऑफ लाइफ और मूवमेंट except a few human figures dressed in the same asbestos cloths as worn by my acquaintance. No vehicle, no street wire, no sound of life, ना कोई movement except कुछ ह्यूमन फिगर के जो एस्बेस्टोस के कपड़े पहने हुए थे। There were little benches placed here and there on the street. We sat down. Improved, isn't it? Said the man in asbestos. Since the days when you remember it, he seemed to speak quite proudly. I gasped out a question. Where are the streetcars and the motors? Oh, done away with long ago, he said. But how do you get about? We don't, he answered. Why should we? It's just the same being here as being anywhere else. मैन और ऑथर रोड पर रखी बेंचेस पर बैठ जाते हैं। ऑथर एस्बेस्टोस से अपने क्वेश्चन पूछता है और एस्बेस्टोस उनका आंसर करता है। ऐसा लगता है जैसे वह बड़ा प्राउड फील कर रहा है। ऑथर एस्बेस्टोस से पूछता है कि कार और मोटर्स कहाँ हैं। इस पर एस्बेस्टोस आंसर देता है कि वे तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई हैं क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। बट हाउ डू यू गेट बैक एंड फॉरवर्ड्स टू योर वर्क? ऑथर एस्बेस्टोस से क्वेश्चन करता है कि वे अपने वर्क के लिए कैसे इधर उधर जाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ तो है ही नहीं। वर्क, ही सेड, देयर इजंट एनी वर्क, इट्स फिनिश्ड, मशीनरी किल्ड इट। इफ आई रिमेंबर राइटली यू हैड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मशीनरी इवन इन योर टाइम, बट इट डिड यू नो गुड। द बेटर योर मशीन्स द हार्डर यू वर्कड।
द मोर थिंग्स यू हैड द मोर यू वांटेड। इस पर एस्बेस्टोस आंसर देता है, वर्क? कोई वर्क नहीं, मशीनों ने इसे ख़त्म कर दिया है। तुम भी अपने टाइम में काफ़ी मशीनरी रखते थे, लेकिन मशीनों से अच्छा तुम हार्ड वर्क करते थे और ज़्यादा चीज़ें रखते थे और ज़्यादा चाहते थे। द पेस ऑफ लाइफ गॉट स्विफ्टर एंड स्विफ्टर। You were all caught in the cogs of your own machine. None of you could see the end. Well, then, there came, probably almost 200 years after your time, the era of the great conquest of nature, the final victory of man and machinery. लाइफ स्विफ्ट हो गई, बहुत स्विफ्ट हो गई, और आप लोग उन्हीं मशीनों के कॉक्स मीन्स दलदल में फंस गए, कोई भी एंड को नहीं देख सका। और तब 200 ईयर्स आफ्टर नेचर की विक्ट्री की एज आई, और देन फाइनली मैन और मशीनरी की विक्ट्री हो गई। डिड दे कॉन्क्यर नेचर? आई आस्क क्विकली। क्या हमने नेचर को जीत लिया? ऑथर क्वेश्चन करता है। Conquered it completely, he said. In fact, as soon as mankind turned its energy to decreasing its need instead of increasing its desire, the whole thing was easy. इस पर एस्बेस्टोस क्या आंसर करता है कि पूरी तरह विक्ट्री। जैसे ही ह्यूमन बीइंग ने अपनी डिज़ायर को बढ़ाने के बजाय अपनी नीड को कम करने के लिए एनर्जी को टर्न किया, सब कुछ आसान हो गया। Chemical food came first. Heavens the simplicity of it. First of all, chemical food आया. And in your time, thousands of millions of people tilled and grubbed at the soil from morning till night. After the invention of chemical food, we built up enough in the emporium in a year to the last 4 centuries. और आपके समय में थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल यानी हजारों लाखों लोग सुबह शाम मिट्टी में हल चलाते थे। केमिकल फूड के इन्वेंशन के बाद हमने एक साल में इनका कई सेंचुरीज के लिए ढेर लगा लिया। एग्रीकल्चर वेंट आउट ऑफ यूज़, ईटिंग एंड all that goes with it, domestic labor, housework, all ended. Nowadays, one takes a concentrated pill every year or so, that's all. खेती यूज से बाहर चली गई और इसके साथ साथ डोमेस्टिक लेबर, हाउसवर्क सबका एंड हो गया। आजकल हम हर साल इसकी एक टैबलेट ले लेते हैं। हैव यू एंड दीज पीपल, आई सेड, नो स्टमक? इस पर ऑथर क्वेश्चन करता है कि क्या आप और इन लोगों के पास स्टमक नहीं है? Of course we have, he answered, but we use our stomach for some purpose. Mine is largely filled with education, surgically implanted. Asbestos ऑथर को बताता है कि किसी पर्पस के लिए हम अपने स्टमक का यूज़ करते हैं। एस्बेस्टोस का एजुकेशन से फिल है और वो भी सर्जिकल इम्प्लांटेड से। Anyway, chemical food came first. That cut off almost 1/3 of the work, and then came asbestos cloths, and then surgical implantation of education. That was wonderful. सबसे पहले केमिकल फूड आया जिसने वर्क का 1/3 पार्ट कट कर दिया, और फिर एस्बेस्टोस क्लोथ्स एंड देन सर्जिकल इम्प्लांटेशन ऑफ एजुकेशन. Then next to that we killed or practically killed the changes of climate. How dreadful it must have been in your day. Wind and storms, great wet masses, what did you call them? Clouds flying through the air. एस्बेस्टस बताता है कि उन्होंने क्लाइमेट का भी एंड कर दिया, और क्योंकि ये ऑथर के टाइम में कितने ड्रेडफुल रहे होंगे। Sometimes I said they looked so beautiful, but how did all this changes? इस पर ऑथर कहता है कि कभी कभी तो ये बहुत सुंदर दिखाई देते थे, और आप लोगों ने इसे कैसे चेंज कर दिया। किल द वेदर, आंसर्ड द मैन इन एस्बेस्टोस, एज सिंपल एज दैट। इस पर एस्बेस्टोस क्या उत्तर देता है कि हमने वेदर का ही एंड कर दिया। सो आई सेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर मीन दैट देयर वॉज नो वर्क मोर टू डू। तो इस पर ऑथर क्या पूछता है कि आपने नेचर को जीत लिया इसीलिए यहाँ कोई वर्क नहीं है। एग्जैक्टली, ही सेड, नथिंग लेफ्ट। इस पर एस्बेस्टोस क्या कहता है, वही तो, अब कोई वर्क नहीं रहा। देन आई रियलाइज्ड, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट वॉट वर्क हैड मीन्ड इन द ओल्ड लाइफ।
ऑथर बताता है कि उसने पहली बार रियलाइज़ किया कि ओल्ड लाइफ में वर्क का क्या रोल होता है. Presently my eyes looked upwards, dangling at the top of an old building. I saw what seemed to be the remains of telephone wires. ऑथर ने ऊपर देखा. पुरानी बिल्डिंग्स पर टेलीफोन के वायर्स लटके हुए थे. What became of all that? I said, the telegraph and the telephone and all the system of communication. ऑथर एस्बेस्टोस से क्वेश्चन करता है कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स टेलीग्राफ टेलीफोन के वायर्स का क्या किया. कट आउट. देयर वॉज नो सेंस इन इट. वर्क when work stopped and commerce ended and food was unnecessary and the weather killed, it was foolish to move about, so it was all terminated. Besides, it was dangerous. हमने वायर्स कट कर दिए क्योंकि इनकी कोई सेंस नहीं थी. एस्बेस्टस आंसर देता है, जब वर्क रुक गया, कॉमर्स ख़त्म हो गया, फूड ज़रूरी नहीं रहा, वेदर ख़त्म हो गया, तो इनके साथ आगे बढ़ना मूर्खतापूर्वक था, इसीलिए सब टर्मिनेट हो गया. इसके अलावा ये डेंजरस था. डेंजरस? आई वॉज सरप्राइज्ड. यू स्टिल हैव डेंजर. ऑथर सरप्राइज होता है. डेंजर? अब क्या डेंजर है? Why, yes, he said, there's always the danger of getting broken. What do you mean? I asked. अब ऑथर के पूछने पर एस्बेस्टस यह भी बताता है कि उन्हें टूटने का खतरा होता है. It simply means that we live forever unless, of course, we get broken. That happens sometimes. We may fall over a high place or bump on something and snap ourselves. We see we are just a little brittle still. एस्बेस्टस ये भी बताता है कि वे हमेशा जीते हैं बजाय इसके कि वे टूट जाएं, क्योंकि ये भी कभी कभार उनके साथ होता है, जैसे वे ऊंचाई से गिर जाएं या किसी से टकरा जाएं. मीन्स वे टूट भी सकते थे. वी सैट साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. आई लुक्ड अबाउट माई सेल्फ एट द क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स, द अनचेंजिंग स्काई एंड द ड्रेयरी एम्प्टी स्ट्रीट. हम थोड़े समय के लिए साइलेंट बैठ गए. ऑथर बताता है कि मैंने अपने आप को एक उस वीरान बिल्डिंग, अनचेंजिंग स्काई और खाली रोड पर देखा जहाँ कोई वर्क नहीं था. Here then was the fruit of the conquest. Here was the elimination of work, the end of hunger and of cold, the cessation of the hard struggle, the downfall of change and death, and yet somehow there seemed something wrong with it all. अब ऑथर क्या कहता है कि मैं ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ वर्क नहीं है, भूख नहीं है, जहाँ ठंड, स्ट्रगल, डेथ कुछ भी नहीं है. मतलब जो हम चाहते थे, जैसा मैं चाहता था वैसा ही सब कुछ है, लेकिन सब के बावजूद भी वहाँ कुछ रॉन्ग है. एस्बेस्टस, आई सेड, then is your coming civilization. ऑथर एस्बेस्टस से पूछता है कि क्या ये आने वाली सिविलाइजेशन है. This dull, dead thing with the work and the burden gone out of life, and with them all the sweetness of it. जो बहुत डल डेड थिंग के समान है, जिस लाइफ में वर्क का बर्डन ही नहीं है. Give me back, I cried, the old life of danger and stress with its hard toil and its bitter chances and its heartbreaks. I see its value, I know its worth. Give me no rest, I cried aloud. Give me back. अब ऑथर क्या बोलता है, तेज़ी से चिल्लाता है कि हमारा जो ओल्ड लाइफ है, जो डेंजर और स्ट्रेस से भरा हुआ है, जहाँ हार्ड वर्क है, अब मैं उसकी वैल्यू जान गया हूँ. ऑथर जो है बहुत तेज़ी से चिल्लाता है. सडनली माई स्लीप हैड गॉन. ऑथर जो है वो नींद से जाग जाता है. आई वॉज बैक अगेन इन द रूम ऑफ माई होटल विद द हम ऑफ द विकेड बिजी ओल्ड वर्ल्ड ऑल अबाउट मी. और ऑथर बताता है कि फिर वो दोबारा से अपने आप को होटल के कमरे में अपने आप को देखता है और वही अपनी विकेड बिजी ओल्ड वर्ल्ड में अपने आप को पाता है.